إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کی اس اسپیچ کی شروعات، اس لیکچر کی شروعات کرتے ہیں صحیح بخاری کی ایک بڑی مشہور ہے، بہت مشہور جو ہے باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس دنیا میں پائی جانے والی جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی بکس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ جتنی بھی دنیا میں بکس ہیں، ان ساری بکس میں سب سے زیادہ اتھینٹک، سب سے زیادہ صحیح اگر کوئی بک ہے جس پر کوئی ٹرسٹ کر سکتا ہے تو وہ ہے یہی صحیح بخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی صحیح بخاری میں ایک باب باندھتے ہیں۔ باب کہتے ہیں جو کوئی بھی آتھر جو ہوتا ہے، محدث، وہ شروع میں پہلے اپنی بات ذکر کرتا ہے، پھر اس کے نیچے اس کے تعلق سے جو حدیث ہوتی ہے اور جو حدیث میں بات ہوتی ہے اور حدیث میں اس کے لیے جو پروف ہوتا ہے، وہ پروف جو ہے حدیث کی روشنی میں اس کو جو ہے ذکر کرتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ باب تعلیم الرجل اہلہ و امتہ، کہ آدمی کا اپنے اہل کو، اپنی وائف کو، اپنی فیملی کو اور اپنی لونڈی کو تعلیم دینا، یہ ہے اس کی میننگ۔ آدمی اپنی وائف، اپنی فیملی اور اپنے جو ہے لونڈی کو تعلیم دے تو شریعت میں، اسلام میں اس کو کیا اہمیت حاصل ہے، اس کو کیا امپورٹنس دی گئی ہے ہماری شریعت میں، اس کا بیان کرنا ہے۔ تو نیچے پھر اس کے حدیث پروف کے طور پر جو ذکر کرتے ہیں، اس حدیث میں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 ٹائپ کے لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی ڈبل اجر سے نوازتا ہے، ڈبل ریوارڈ۔ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے اچھے کام، ان کی نیکیوں پر ان کو ڈبل اجر دیتا ہے، ڈبل ریوارڈ۔ اس میں سے ایک قسم لوگوں کی وہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ وہ آدمی جس نے کسی لونڈی کو تعلیم دیا۔ لونڈیاں اس زمانے میں ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں ایک لونڈی اور غلام کا سلسلہ تھا۔ اسلام میں پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، اسلام سے پہلے سے یہ چیز تھی۔
اسلام نے آہستہ آہستہ اس پورے جو ہے سسٹم کو ختم کیا اور اس سسٹم کو ختم کرنے کی طرف دعوت بھی دی اور بار بار اس پر ابھارا کہ ان جو ہے اور ان لوگوں کو جو غلام اور لوڈی بنا کر کے رکھے جا رہے ہیں یہ بھی ہمارے جیسے انسان، ان کو آزاد کرو، ان کو آزاد کرو۔ اتنا ابھارا اس کے اوپر اور اتنا اس کے لیے ریوارڈ کا ذکر کیا، اس کی جو ہے آزاد کرنے کے لیے اتنے سارے کفاروں میں اور مختلف گناہوں کے کفارے کے لیے اس کو لوڈی اور غلام کو آزاد کرنے کی اتنی ترغیب دی کہ آہستہ آہستہ یہ نظام دنیا سے ختم۔ تو اس زمانے میں لوڈی اور غلام ہوتے تھے، تو کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، نوٹ کیجئے گا کیا کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پروفٹ، بلاؤڈ پروفٹ، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کسی نے اگر اپنی لونڈی کو تعلیم دی، اس کو سکھایا، دین کے بارے میں بتایا، اسے جو ہے تعلیم دی، اسے سکھایا اور کیا کیا؟ اسے آزاد کیا اور پھر اس سے شادی کر لی، تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ڈبل ریوارڈ دیتا ہے، ڈبل اجر سے نوازتا ہے ایسے آدمی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی سے یہ پروف بھی لیا کہ جب ایک لونڈی کو آزاد کر کے، ایک لونڈی کو تعلیم دے کر کے، اسے آزاد کر کے اس سے شادی اگر کوئی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی اتنی اہمیت بن جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈبل ریوارڈ سے نوازتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تعلیم دے، اپنی بیوی کو، اپنی فیملی کو تعلیم دے، اس کے لیے تعلیم کا انتظام کرے، خود جو ہے اس کو تعلیم دے یا تعلیم کا انتظام کرے، ظاہر سی بات دونوں باتیں اس کے اندر آئیں گی، اس کے لیے اس طرح کی اپارچونٹیز وہ فراہم کرتا ہے اور اس کے لیے اس طرح کے مواقع جو ہے فراہم کرتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، اس کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں تم پڑھو، اس کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے جو ہے خود موقع دیتا ہے، اس کو جو ہے کہتا ہے کہ تم جو ہے سیکھو، تم پڑھو۔ اگر آدمی بیوی کو تعلیم دے، پہلے تو لوڈی کی بات آئی ہے حدیث کے اندر، لیکن کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر بیوی کو تعلیم دے تو یقیناً جو ہے اس کو یہ اجر اور یہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملے گا، کیونکہ اگر لونڈی کو تعلیم دینے کی اتنی فضیلت ہو سکتی ہے تو پھر بیوی اونچا مقام رکھتی ہے، اس کو تعلیم دے، خود تعلیم دے یا دوسروں سے تعلیم اس کو دلوانے کا انتظام کرے، اس کو یہ موقع فراہم کرے، اس کے لیے جہاں کہیں بھی اپارچونٹیز ہوں اس طرح کی، اس کے لیے وہ جو ہے ہم خود جو ہے آگے بڑھ کر کے چلو تم کو جو ہے ہم اس میں ایڈمیشن کرا دیتے ہیں، سیکھنے کی، اس کے سیکھنے سکھانے میں جو ہے وہ اگر ہیلپ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو بھی ڈبل ریوارڈ ملے گا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، ان کا یہ جو ہے ان کے کہنے کا مطلب ہے۔ یہیں سے ہم آج اپنے اس جو ہے درس کی شروعات کرنا چاہیں گے میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ یہ جو گھر کے ماحول میں تعلیم دینے، تعلیم حاصل کرنے، سیکھنے سکھانے، ٹیچنگ اور لرننگ، یہ جو ایک انوائرمنٹ گھر کے اندر بنے، سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، اتنی پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ ایک خاتون آئی، تو چاہتی تھی کہ آپ سے شادی کرے، اس کو جو ہے عربی زبان میں واہبہ کہا جاتا ہے، میں فی الحال اس کی ایکسپریشن میں نہیں جاؤں گا۔ ایک خاتون کی یہ خواہش تھی کہ وہ آپ سے نکاح کریں، آپ ان سے نکاح کر لیں، انہوں نے آ کر کے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور آپ نے اپنی اس خواہش کو جو ہے یہ کیا کہ جو ہے اب گویا کہ آپ کو نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
تو جو صحابہ وہاں موجود تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں تو مجھ سے اس عورت کی شادی کرا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس صاحب، ٹھیک ہے میں شادی تو کرا دوں گا لیکن تم مہر میں کیا دو گے؟ تو اسلامی طریقہ تو یہی ہے کہ اگر شادی کرنی ہے تو شادی کرنے والے مرد کے اوپر ہی ساری ذمہ داریاں آتی ہیں۔ شادی کے خرچے سے لے کر کے، شادی جتنی سادگی سے ہو جائے اتنا اچھا، لیکن شادی کا جو بھی خرچ ہے وہاں سے شادی کے خرچے سے لے کر کے جو ولیمے کا خرچ ہوتا ہے، عورت کو مہر دینے تک، اور گھر کا انتظام کرنا، اور اس کے رہنے سہنے کھانے پینے کا پورا انتظام کرنا، یہ سب کی سب مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت کے لحاظ سے یہی سسٹم ہے اس کا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ اس خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے کہ آپ اس کو مہر میں کیا دیں گے، کیونکہ ان کی ظاہری شکل دیکھ کر کے لگ یہ رہا تھا کہ یہ کوئی پیسے والے شخص نہیں ہے، مہر دینا بھی ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ نے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ جو میں نے ازار باندھ رکھا ہے، ازار کہتے ہیں نیچے کے حصے، بدن کے نیچے کے حصے میں جو چادر باندھ لیتے ہیں، آپ نے حج کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ جو حج کا احرام باندھتے ہیں تو کیسے نیچے چادر باندھ لیتے ہیں، تو اسی کو عربی زبان میں ازار کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا، صحابی نے کہا کہ اس ازار کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ یہ ازار اگر اسے تم مہر میں دو گے تو تم کیا کرو گے پھر؟ اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں اس کے پاس۔ کس طرح کی زندگی صحابہ کرام نے گزاری تھی اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ۔ کہا کہ اگر تم نے یہ مہر میں دے دیا تو پھر جو ہے تم کیا ننگے گھر میں بیٹھے رہو گے، کیا کرو گے پھر؟ تو باہر تو نکل نہیں سکتے، اگر کپڑا بدن پہ ہے، کپڑا بدن پر نہیں ہے تو باہر نہیں نکل سکتے، تم پھر کیا کرو گے؟ اس کے بعد تمہیں باہر نکلنا ہے، کمانا ہے، گھر والے کا جو ہے خیال رکھنا ہے، تو تم یہ خیال کیسے رکھو گے اگر تم نے یہی ازار اس کو دے دیا، مہر میں دے دیا؟ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اسلام کا یہ جو گھر کا نظام ہے، فیملی سسٹم ہے، وہ کتنا عمدہ اور کتنا پیارا نظام ہے، کتنا اچھا نظام ہے۔ آپ خود سوچئے ذرا کہ کیا کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا شادی کے طرف، ٹھیک اچھا نکاح کرا دیتا ہوں تمہارا، بعد میں کبھی مہر دے دینا۔ اچھا تمہارے پاس یہی ہے تو تم اگر دے دیے مہر میں تو پھر تو ایسے رہو گے، تو ایسا کرتے ہیں کہ مہر بعد میں دینے کی بات ہم کر لیتے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا۔ یعنی گویا کی تصور یہ تھا، سوچ یہ تھی کہ جو مہر باندھا ہے اس مہر کو فوراً ادا بھی کرنا ہے، یہی تصور تھا، یہی سوچ تھی، اسلامی سوچ یہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مخلوق الحال صحابی، اتنے غریب، اتنے نادار، اتنے پور صحابی جن کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایک ازار کے، اس صحابی سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دے دیا تو پھر آپ کیا کرو گے؟ یعنی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جو ہے فی الحال اتنا کہہ لو کہ میں بعد میں دے دیتا ہوں، میں نکاح پڑھا دیتا ہوں، بعد میں آپ دے لینا کبھی بھی جو ہے، میں ایسا نہیں کیا۔ پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، کہا جاؤ گھر دیکھو، کہیں بھی کونے خطرے میں بھی گھر کے کسی حصے میں بھی ایک جو ہے لوہے کی ہی جو ہے جو رنگ ہوتی ہے، چھلا جسے کہتے ہیں، لوہے کی رنگ جو ہے، وہ بھی سونے چاندی کی نہیں، لوہے کی بھی رنگ اگر جو ہے، اسٹیل کی رنگ بھی اگر مل جاتی ہے تو لے کر کے آؤ، میں تمہاری شادی اس جو ہے مہر کے ساتھ ان سے کر دوں گا۔ تلاش بہت کیا، کہیں کچھ نہیں۔ گھر میں کھانے پینے کی جو برتن وغیرہ جو ہو سکتے ہیں وہ تو رہے ہوں گے، یقینی بات ہے کہ جو ہے کھانا پکانا ہے، کھانا ہے تو
لیکن جو ہے اس کے علاوہ ایک معمولی کوئی چیز بھی جو ہے نہیں ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی نکاح کی خواہش ہے، شادی کی خواہش ہے، اور گھر میں کچھ ہے نہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ مہر دے سکے اور یہ خرچ برداشت کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں، کچھ آیتیں یاد ہے؟ یہ بھی صحیح بخاری کی بڑی مشہور ہے۔ کہا کہ کیا قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہے تمہیں؟ کہا کہ ہاں ہاں مجھے فلاں فلاں صورتیں زبانی یاد ہیں، بائی ہارٹ ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو ہے صورتیں تم ان کو سکھا دینا، اور اسی مہر کے ساتھ میں تمہارا ان سے نکاح کرتا۔ یہی پوائنٹ ہے آج کے اس درس۔ ایک آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کے ساتھ بھی نکاح پڑھا دیتے، یہی مہر ہے، چلو کہ تمہیں اپنی بیوی کو سکھانا ہے، اپنی بیوی کی تعلیم کی تمہیں ذمہ داری لینا ہے، تمہیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اور اسی کے بدلے میں کیا ہے؟ یہی مہر ہے، اور اسی مہر کے ساتھ ہم تمہارا نکاح ان سے کروا۔ اور اس طریقے سے یہ شادی عمل میں آئی۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا جو بڑا ہے، گھر کا بڑا شادی ہونے کے بعد شوہر ہی ہوتا ہے، پھر بیوی بچے سب جو ہے اسی ایک گھر کے اور فیملی کے ممبرس ہوتے ہیں، لیکن اہم چیز اس فیملی میں سب سے اہم اور اونچا مقام جس کا ہوتا ہے وہ شوہر ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ گھر میں بڑے ہونے اور گھر کے سربراہ ہونے، گھر کے ماحول کو صحیح رکھنے، گھر کے نظام کو صحیح رکھنے کے لیے اہم ذمہ داری دے رکھی ہے، اور رسپانسیبل اس کو بنایا ہے، اور اسی کے انڈر میں پھر سبھی کی سبھی رسپانسیبل، ہر ایک کو رسپانسبلٹی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اسلام میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو رسپانسیبل نہ ہو، ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے ہم انسانوں کو، ہیومن بینگ کو، اس میں ہر ایک کو رسپانسیبل بنایا ہے، اور ہر ایک کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص رسپانسیبل ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے وہ یہ سوچے کہ بھائی میری تو کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، نہیں۔ تو گھر کا جو بڑا ہے سب سے بڑی ذمہ داری بھی اسی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے رتبے ہوتے ہیں، جیسے جیسے گریڈ ہوتا ہے نا کسی کا، اب کہیں بھی کسی بھی گورنمنٹ کو لے لیجیے، گورنمنٹ میں جیسے جیسے اس کا گریڈ ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے اس کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے۔ جس کا گریڈ اونچا ہوگا اس کی رسپانسبلٹی بھی اونچی ہوگی۔ تو گھر کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا ہمارا ماحول بھی، ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، یہ سسٹم بھی کیا ہے؟ گھر کے اندر بھی سمجھیے ایک پورا ملک بستا ہے، یہاں پر بھی ایک جو ہے پرائم منسٹر ہے، ہوم منسٹر ہے، گھر کے اندر پورا ایک وہی سسٹم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے اس ماحول میں، گھر کے اس نظام میں جس کو جتنا جو ہے گریڈ دیا ہے اتنا ہی رسپانسیبل بھی اس کو بنایا ہے، اور اتنی ہی بڑی رسپانسبلٹی بھی اس کو دی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور گھر میں جو شوہر ہے اس کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے، کیونکہ وہ گریڈ 1 بنتا ہے، اس کو اونچے عہدے پر رکھا گیا ہے گھر کے۔
इसीलिए पहली जिम्मेदारी उसी की होती है कि अगर बीवी को कुछ नहीं मालूम है तो अपनी बीवी को सिखाए, ये उसकी जिम्मेदारी। अपने बच्चों को सिखाए, ये उसकी जिम्मेदारी होती। अब आज के इस माहौल में होता ये है कि आदमी के पास वक्त नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पे जाता है, जॉब करता है, तिजारत करता है, बिजनेस करता है, कोई भी जो है रोजी रोटी का जो वो सामान मुहैया करता है या रोजी रोटी के लिए जो वो तगोदाव करता है, कोशिश करता है, बाहर निकलता है और मेहनत करता है, टाइम नहीं है उसके पास, तो क्या है फिर खुद नहीं सिखा सकते तो दूसरी जगह सीखने का इंतजाम कर, ये जिम्मेदारी इंतजाम कर, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए। ये शख्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, उसका जिम्मेदार है, उसको ये जिम्मेदारी निभाना है, अपनी बीवी के ताल्लुक से भी, अपने बच्चों के ताल्लुक से भी। अब उसके बाद एक मसला, एक सवाल क्या आएगा, सवाल ये आता है कि खुद उसका अपना क्या मामला है, क्या उसको तालीम हासिल करने सीखने ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरों की बात कर रहा था मैं अभी तक, जो जितनी भी बातें की वो सब बीवी को सिखाने, बच्चों को सिखाने। बीवी और बच्चों को सिखाना है तो जाहिर सी बात है कि खुद भी सीखना है। जब तक खुद नहीं सीखेंगे अपने बीवी बच्चों को क्या सिखाएंगे, तालीम की अहमियत कैसे पता चलेगी, तो खुद सीखना पड़ता है, खुद भी सीखने की तरफ तवज्जो देना पड़ेगा। खुद सीखेंगे तो बीवी बच्चों को भी सिखाएंगे, पहले खुद सीखने की तरफ तवज्जो देना। कभी कभी ये सवाल भी आ सकता है, और आज के इस माहौल में, आज के इस दौर में, आज के इस जमाने में ये चीज बहुत कसरत से पाई जा रही है कि ये जो है सर्वे जो कराते हैं लोग, तो सर्वे में कराने के बाद ये बात कहते हैं कि जो है लड़कियां लड़कों से आगे हैं तालीम। सर्वे कराते हैं, सर्वे का जो रिजल्ट आता है, मैं वो बता रहा हूँ आपको, जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सुनने को जो मिलता है, देखने को जो मिलता है, वो बता रहा हूँ आपको। सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती रहती है कि लड़कियां लड़कों से आगे, यानी ऑलरेडी जब आदमी शादी कर रहा है तो 90% तो ऐसा ही हो रहा है कि लड़की जो है उस लड़के से कहीं तालीम में बेहतर है, पहले से ही वो जानती है, सीखी हुई है। तो अब अगर बीवी जानती है, सीखी हुई है, तो अब शौहर की जिम्मेदारी मेरे भाइयों और बढ़ जाती है कि वो खुद भी अपने आप को सीखने वाला बनाए, खुद भी कोशिश करे आपकी जो है मुझे सीखना है। शादी हो जाने का मतलब ये हरगिज नहीं होता मेरे भाइयों कि अब सीखने की उम्र हमारी खत्म हो गई, नहीं नहीं। आप चाहते हैं घर में बीवी सीखे, बच्चे सीखे। कौन है ऐसा फर्द दुनिया के अंदर जो ये नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी अच्छी तालीम हासिल कर ले, उसकी बीवी दीन की अच्छी नॉलेज हासिल कर ले, उसकी बीवी अच्छी आलिमा बन जाए, ताकि उसके बच्चों को एक ऐसी गोद मिल जाए बच्चों को परवरिश के लिए जो सिखाने वाली गोद है। बच्चा अपनी माँ से सीखता है, माँ जानेगी तब ना बच्चे को सिखाएगी, जो माँ जानती नहीं वो सिखाएगी क्या। जो जाहिल औरतें होती हैं वो अपने बच्चों को जहालत के सिवा क्या देने वाली है, कुछ नहीं दे सकती हो। तो बच्चों को पढ़ा लिखा होने के लिए, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए पहले माँ का सही होना जरूरी है। माँ एक ऐसी गोद है, एक ऐसा मदरसा है, एक ऐसा स्कूल है मेरे भाइयों और बहनों, जिस स्कूल से बच्चा सबसे पहले तालीम हासिल करता है। अगर ये स्कूल सही हो, ये टीचर सही हो, तो यकीनी तौर पर बच्चे की जो
प्राइमरी तालीम है, प्राइमरी एजुकेशन है जो अपनी मदर से वो हासिल करता है, वो भी सही। और पूरी एक कौम, एक नेशन तैयार। इसीलिए तो कहते हैं, अरबी जबान में भी बात है, आप जो है इंग्लिश में भी ये बातें पढ़े हुए हैं, अरबी में इसके बारे में कहा गया है कि अल उम्मु मदरसतुन इदा आदतहा आदत शअबन तय्यबल आराफी, कि माँ, मदर, ये क्या है? एक ये मदरसा है, एक स्कूल है ये। अगर इस स्कूल को आपने अच्छी तरह से तैयार कर दिया, शौहर ने इसकी तरफ तवज्जो दी कि अपनी बीवी को अच्छी तालीम दिला दे। पहले से ही पढ़ी हुई लड़कियां रहती हैं आजकल, शादी से पहले भी पढ़ी हुई रहती है, लेकिन जो कुछ जानती है ठीक है, लेकिन बच्चों की तरबियत के लिए अगर उनको और बेहतर दीनी माहौल और दीनी तरबियत मिल जाए तो ये और अच्छी बात होगी। तो इसके लिए मैं आपसे ये बात जो है जिक्र कर रहा हूँ कि अगर शौहर ये महसूस करे कि उसकी जो है बीवी को जरूरत है तालीम की, और ये कब महसूस करेगा? जब खुद इसकी तरफ आएगा, खुद वो सीखना चाहेगा, क्योंकि बच्चे का ताल्लुक सिर्फ जो है माँ से नहीं होता, बाप से भी होता है। तो कहा जो है कि अरबी में कि माँ क्या है? ये असल में एक मदरसा है, एक स्कूल है। अगर इस स्कूल को आपने सही तैयार कर दिया तो क्या होगा? आदत शअबन तय्यबल आराफी, तो आपने एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतर नेशन को आपने बिल्ड कर दिया। नेशन जो है बिल्ड होता है इससे, एक नेशन, एक पूरी कौम तैयार हो जाती है। माँ अकेली नहीं बल्कि एक समझिए पूरी कौम तैयार हो जाती है। यही है मेरे बहनों। तो पहली जिम्मेदारी घर के बड़े की होती है, शौहर की होती है कि वो खुद जो है इल्म की तरफ तवज्जो दे। जब तक खुद वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देगा, घर में बीवी बच्चों की भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं होगी। एक बच्ची, एक बच्चा जब देखेगा कि मेरा बाप इतना पढ़ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, अब तक तो जो है इतनी सारी डिग्रियां हासिल कर चुका है और अभी भी इतनी मेहनत कर रहा है, बीवी देखेगी कि मेरा शौहर इतनी जान खपा रहा है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए और मुझे भी मजीद हासिल करना चाहिए। तो ये दूसरे भी इंस्पायर होते हैं इससे। जब खुद जो है घर का बड़ा आगे बढ़ेगा इस सिलसिले में, तो घर में जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके ऊपर इसका इतना अच्छा असर पड़ता है कि वो खुद भी जो है इसमें आगे बढ़ने की फिर कोशिश करेंगे। तो ये जो है वो भी जो है इससे मुतासिर होंगे और उनको कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद आगे बढ़ करके फिर सीखना चाहेंगे और उनके लिए भी एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इन्वायरमेंट घर के अंदर बनाए शौहर, घर का बड़ा आदमी। तो ये सबके लिए बेहतर चीज। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब शादी हो गई अब क्या सीखना, नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सही बुखारी में एक कौल नकल करते हैं और उस कौल को नकल करने के बाद जो है अपनी एक बात जिक्र करते हैं। क्या है वो असल में कि तअल्लमू क़ब्ल अन तुसव्वरू, फिर वो कहते हैं बाद अन तुसव्वरू, कि सीखो, सीख लो कब्ल इसके कि तुम्हें सरदार बनाया जाए। ये घर का जो सरबराह होता है वो भी सरदार ही होता है। तो हर आदमी, मैंने आपसे कहा, अपने घर के अंदर घर का बड़ा है तो सरदार है। तो कब्ल इसके कि तुम्हें सरदार बनाया जाए, क्या करो? सीख लो, पहले से सीख। अगर नहीं सीख पाए हो तो बाद अन तज़व्वजू, कहा है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कि शादी के बाद भी सीखो। ये लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग जो है ना, ये सीखना, ये ऐसी चीज है जो इंसान की फितरत से ये चीज जुड़ी हुई है। इंसान जब तक सीखता रहता है तो समझिए कि वो वाकई माने में एक अच्छा इंसान है, क्योंकि ये इंसानी सिफत है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर सीखने की ये जो है, ये नेचर जो उसके अंदर रखा है सीखने का।
اور ضروری ہے، جب تک سیکھتا رہتا ہے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک بہت مشہور بات ہے انگلش کے اندر، وہ بات کہی جاتی ہے، سائیکالوجی میں یہ بات ذکر کرتے ہیں، سائیکالوجی جو ایک سبجیکٹ ہے اس میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے ہیپینس ملے، خوشی ملے، ہر آدمی ہیپی رہنا چاہتا ہے۔ تو واٹ از دا ٹاپ سیکرٹ آف ہیپینس، یہ سوالات کہ آپ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس خوشی حاصل کرنے کے لیے ٹاپ سیکرٹ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں انگلش میں کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ آپ سیکھنا سیکھ۔ ہیپینس از ان لرننگ، خوشی سیکھنے میں ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یعنی یہ جو ہے فطرت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو انسان کا نیچر ہے، ہیومن بینگ کا جو نیچر ہے نا، اس کے نیچر میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ جب وہ کچھ سیکھتا ہے تو اسے اندر سے خوشی ملتی ہے۔ اگر واقعی خوش رہنا چاہتے ہو تو سیکھنے کی عادت ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھو۔ یہ نہیں کہ میں سیکھ چکا ہوں اب مجھے کیا سیکھنا ہے، نہیں۔ انسان ماں کی گود سے لے کر کے جب تک قبر تک نہ پہنچ جائے تب تک اس کے لیے سیکھنے کا یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں العلم من المہد الی اللحد، کہ یہ علم یعنی نالج حاصل کرنا، سیکنگ آف نالج، یہ علم حاصل کرنا یہ ماں کی گود سے لے کر کے جب جو ہے دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت سے لے کر کے قبر میں جانے تک یہ سیکھنے کی عمر ہے۔ سیکھنے کی کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اب ہماری سیکھنے کی عمر نہیں رہی، نہیں نہیں، یہ بڑا غلط جو ہے تصور ہوتا ہے کہ اب ہماری تو سیکھنے کی عمر نہیں، اب بچے سیکھیں گے، نہیں۔ آپ سیکھو، آپ آگے بڑھ کر کے سیکھو گے تو بچے خود آپ کو دیکھ کر کے انسپائر ہوں گے اور خود جو ہے سیکھیں گے۔ صرف بچوں کو مارنے اور بچوں کو نصیحت کرنے سے بچے نہیں سیکھیں۔ یہ چیزیں جو ہے یاد رکھنے کی ہے، نوٹ کرنے کی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، اور میں خاص طریقے سے آج کے اس درس میں یہ بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ سیکھنے کی عادت، میں کیا کہہ رہا تھا کہ خوشی جو ہے دنیا کی، جو اس کا ایک بہت اہم راز، بہت سارے اسباب ہیں خوشی کے، اس میں سے ایک بات، اہم بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکھنے میں ہے خوشی۔ آپ کو اب یہ انسانی فطرت ہے، یہ کیسے میں نے یہ بات کہی؟ آپ ایک بچے کو لے لیجیے، چھوٹا بچہ جو اپنی زبان سے کہہ تو نہیں سکتا کچھ، لیکن آپ اس کے باڈی لینگویج کو دیکھیں گے تو جب کوئی چیز وہ بچہ سیکھتا ہے اس کو ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جس سیکھ جاتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج آپ دیکھیں گے تو کتنا اس میں خوشی ظاہر۔ یہی ہر ایک کا معاملہ ہے۔ جب بھی ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی اپنی ایک خوشی ہوتی ہے، سیکھنے کی ایک خوشی۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کچھ الٹا ہو گیا، حالانکہ کچھ ایسا دنیا میں رکھا گیا ہے ابھی کہ کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ ابھی جو لوگ ہمارے بھائی لوگ جو ہے کام کرتے ہیں مختلف جو ہے کمپنیوں وغیرہ پہ، تو ان کو پہلے سے جو پڑھے ہوئے ہیں نا، تو کچھ نئی نئی ٹیکنالوجی تو آتی رہتی ہے تو ان کو کچھ نیا پڑھتے رہنا پڑتا ہے ابھی، تو اس لحاظ سے وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ وہ سیکھتے ہیں نا ویسے ہی گھر کے اندر بھی، گھر کے ماحول میں بھی، دین کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے۔ یہ سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے، یہ اسٹاپ نہیں ہونا، بلکہ جاری رہے۔ خود سیکھیں گے تو اپنی بیوی کو بھی سکھائیں گے، اپنے بچے کو بھی سکھائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ بھی سیکھیں، بلکہ وہ تو خود بخود دیکھ کر کے سیکھیں گے، میرا یہ یقین ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سب سے جو ہے سیکھنے کی عادت ڈالیں۔ ایسی باتیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ بعض لوگ جو تھیوری باز رکھتے تھے، سوچتے رہتے تھے، وہ باتھ روم میں باتھ لے رہے، نہا رہے ہیں، اس دوران ان کو اچانک جو ہے اس کا سالوشن سمجھ میں آ گیا، ایسا خوش ہوئے
कि वैसे ही नंगे ही बगैर कपड़ा पहने हुए बाहर निकला है। खुशी जो है जाहिर, वो सीखने की एक खुशी होती है। हैप्पीनेस तो आप में से हर कोई चाहता है, हर कोई ये चाहता है घर में बड़ा खुशी का माहौल है। तो उस खुशी के माहौल के लिए एक ये भी नसीहत है कि सीखने की आदत डालो, और सीखने में इंसान को खुशी मिलती है। देखिए घर के अंदर सीखने सिखाने का माहौल रखिए, उसके बाद देखिए कितनी खुशी हासिल होती है घर के लोगों को, कितना खुश होते हैं घर के लोग। हमारी एक बहन, एक खातून जो है, जो अभी अरबिक क्लास जो है ज्वाइन कर रखी है, उन्होंने एक मरतबा जिक्र किया मेरे पास कि जो पढ़ रही है वो अरबिक लैंग्वेज अपनी छोटी बच्ची के सामने जिक्र करती है, तो छोटी बच्ची जो है उनसे जो सीख रही है तो इनको बड़ी खुशी मिल रही है। और क्या है ये खुशी? सीखने में। इससे घर का माहौल भी बड़ा अच्छा होगा, बड़ी खुशी रहेगी पूरे घर के माहौल। घर का बड़ा भी सीखने की कोशिश करे, घर के दूसरे लोग भी इंशाअल्लाह सीखने वाले बनेंगे। और कुछ न कुछ सीखते रहिए, पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ना, मुताला करना, रीडिंग, राइटिंग, और ये जो है लर्निंग, ये जो है ना सीखना, कुछ न कुछ सीखना, ये आदत डालिए। यकीन मानिए कि इससे आपको भी फायदा होगा, आपके घर वालों को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा, पूरे समाज और सोसाइटी को इससे फायदा होगा, और पूरा माहौल बहुत अच्छा बन जाएगा इसके बाद। यही मेरी गुजारिश थी। आज का दर्स यही था कि आप सीखने के मामले में कभी मत समझे कि सीखने की कोई उम्र होती है, नहीं। सीखने के मामले में कभी भी आप किसी तरह की शर्मिंदगी न समझें, यानी आप जो है शेम जो है फील करें कि मैं अब इस उम्र में क्या सीखने जाऊं। नहीं, न सीखना ये शेमफुल हो सकता है, लेकिन किसी भी उम्र में सीखना ये तो बड़ी फजीलत की बात, बड़ी अहमियत की चीज है। और ये बताता है कि आदमी के अंदर सीखने की कितनी ख्वाहिश है अंदर से। तो ये हमेशा सीखना। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई और वो मुसलमान हुए, क्या उम्र थी उनकी? क्या वो छोटे से बच्चे थे? नहीं, वो बड़े बड़े बच्चों के बाप थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही आई 40 साल की उम्र में, और उस वक्त तो उनसे कहा गया इक़रा। हमारी किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे गाइडलाइन के तौर पर, और हमारी गाइड के लिए, हमको गाइड करने के लिए, हमको जो है सही रास्ता दिखाने के लिए जो गाइडलाइन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए भेज रखी है कुरान की शक्ल में, उसकी शुरुआत तो सूरह फातिहा से होती है, और उसका खातिमा जो है आखिर में क्या है? सूरह नास है। और आखिरी पारा, 30वां पारा जो है, उसमें एक सूरा है, और उसकी शुरू की 5 आयतें अल्लाह ताला ने सबसे पहले भेजी, जिसमें शुरुआत होती थी इक़रा से, इक़रा से। तो पहला वर्ड जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के लिए नाजिल किया था, वो पहला वर्ड क्या था? इक़रा था। जो एक सेंटेंस भी है अरबी ज़बान के, यानी पढ़िए, रीड। जबकि हमारे बिलोड प्रॉफिट पढ़े लिखे नहीं थे। मतलब ये है कि आप ने किसी स्कूल में तालीम नहीं हासिल की थी, आप जो है किसी के यहाँ जा करके आपने कोई तालीम हासिल नहीं की, आपने लिखना पढ़ना नहीं सीखा, आपने वही साफ साफ कह दिया मा अना बिक़ारि, मा अना बिक़ारि। इट मीन्स आई कांट रीड, आई एम नॉट एबल टू रीड। मैं पढ़ ही नहीं सकता, मेरे पास पढ़ने की सलाहियत नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता। मैं कोई क्वालिफाइड पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी ना हूँ कि जो है मैं पढ़ लूँ, आप जो कहोगे तो मैं पढ़ लूँ।
तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको छोड़ा नहीं, 3 मरतबा की बताया, 3, और तीसरी मरतबा के बाद आपने पढ़ना शुरू किया। ये वो मैसेज था, वो पैगाम था जो गारे हिरा से, हिरा जो केव जिसे आप कहते हैं, कि जो है गार जो था, वहां से ये पैगाम लेकर के हमारे बिलौद प्रॉफिट, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। वो क्या था? रीड, और किसी को उस वक्त तक मत छोड़ो जब तक कि उसने पढ़ना नहीं शुरू। जब तक सीखेंगे नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, आपको सीखना है, सीखना है। ये कहना काफी नहीं, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं सीख सकता, मुझे परेशान नहीं, नहीं, सीखना है। और घर का जो सबसे बड़ा है, पहले वो ये तय करे कि मुझे सीखना है, और सीखते रहना है। सीखने के लिए कोई जो है लिमिटेशन नहीं है कि इस जो है स्टेज को पहुंचने के बाद अब मेरे सीखने का मसला खत्म हो गया, नहीं, सीखते रहना है। खुद भी सीखते रहेंगे, घर वालों को भी सिखाएंगे, और उनके लिए भी सीखने का जो भी, जहाँ कहीं भी कोई मौका होगा तो उनको भी सीखने के लिए लगाएंगे। यही चीज करनी है, और किसी को इसके बगैर छोड़ना नहीं है। दुनिया में तो मेरे भाइयों इतना नॉलेज, इतना इल्म है कि आप अगर जो है, ये एक ऐसा समंदर है, कहते हैं ऐसा सी जो है समंदर, कि आप जितना नीचे जाते जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि अभी तो मैं बहुत ऊपर हूँ, अभी इल्म के अंदर बहुत डेप्थ है, बड़ी गहराई है, इतना इल्म है दुनिया। सीखते रहो, सीखते रहो, वो खत्म नहीं होगा, उम्र खत्म नहीं। तो हमेशा सीखते रहने की कोशिश करो। वक्त जो है ज्यादा हो रहा है, तो मैं चूंकि सवाल और जवाब की बात भी थी, क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखना था, और जो है हमारे पास वक्त कम ही रह गया, इसलिए मैं बात को अपनी यहाँ खत्म करता हूँ, और आपको मौका देता हूँ कि आपके अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो आप सवाल कर सकते। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। बेशक, अब जो सीखने के लिए आप जो बोले, अब उसके लिए जो वक्त जो निकालने की बात है, ये जी बोलिए। हाँ जी, वो वक्त के, अब अभी अब जो हमारे बहुत सारे साथी हैं वो पे अरबी सीख रहे हैं, उसके लिए भी एक दिन में कितना वक्त निकालना जरूरी अब पड़ेगा, अभी कितना जी। हाँ जी, मैं आपको ये बता दूं, पहली बात ये तो आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है, ये कि जो है ये बड़ा मसला होता है हर एक के साथ में। हर कोई ये बात कहता है, वक्त निकालने का मसला होता है। किसी भी ख्वाहिश तो हर एक को होती है, लेकिन वक्त कैसे निकाले उसके लिए, बिजी लाइफ है हर एक की, तो जो है इसमें से वक्त कैसे निकाले। ये याद रखिए कि ये सारी चीजें आपके तो जॉब है, आपको घर चलाना है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए आपको आमदनी और इनकम के जराए भी आपके पास होना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम जो भी है, आप कहीं काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपके पास है, उसको आपको टाइम देना है, वहाँ पूरी कोशिश करनी है। उसमें से आप कुछ भी कट ऑफ नहीं कर सकते कि जो है मुझे अब इसके बाद इसमें वक्त नहीं लगाना है, नहीं। वो जैसा नेचर है उसका, नेचर ऑफ जॉब, उसके लिहाज से आपको उसमें अपना 100% देना है। वो आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जो भी ड्यूटी है, ड्यूटी आवर्स के अलावा भी अगर कभी काम पड़ जाता है तो वो आपको देना है, उसके बारे में आप कटौती नहीं करेंगे। जी हाँ, लेकिन हर एक के पास उसके अलावा भी टाइम होता है। किसी एक दिन नहीं मिला किसी वजह से, अलग बात है, लेकिन उसके अलावा भी उसके पास टाइम होता है। मेन हमारी परेशानी ये होती है कि हम जो है टाइम मैनेजमेंट हमारा सही नहीं होता। अगर हम पूरा 24 आवर्स, अगर हम इसका पूरे तरीके से अपना हिसाब रखें, तो देखिए कि आपका जॉब टाइमिंग क्या है, और दूसरी जो है कामों में आपका कितना वक्त जा रहा है, कैसे वक्त आपका जा रहा है, और कहाँ गुंजाइश है कि वहां से आप वक्त निकाल करके रोज कम से कम 1 घंटा हम जो है कुछ सीखने के लिए लगा। देखिए आपको निकलेगा जरूर,
टाइम निकलता है, टाइम असल में निकालना पड़ता है। और जब तक हम ये सोचेंगे कि नहीं भाई मेरी तो बहुत ही बिजी लाइफ है, मेरे पास टाइम कहाँ है इसके लिए, जब तक ये सोचते रहते हैं कभी भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। टाइम आप ये सोचे कि आप सारा कुछ काम छोड़ करके, आपको हर काम से बिल्कुल अलग करके सिर्फ सीखने के लिए आपको छोड़ा जाए तब आप सीखेंगे। अगर आपने ये सोच रखा है तो लिख लीजिए, आप कभी नहीं सीखेंगे, क्योंकि दुनिया की ये जिम्मेदारियां तो कभी आपसे खत्म नहीं हो सकती। आप क्या समझते हैं कि जो सहाबे किराम जो इस्लाम लाते थे तो अपना सारा कारोबार सारी चीजें छोड़ करके दीन सीखने में लग जाते थे? नहीं, उन्होंने दीन सीखा भी है तो अपने सारे कामों के साथ सीखा। उसके लिए उनको टाइम मैनेजमेंट जैसे भी करना पड़ा उन्होंने किया। ऐसे भी बात सहाबा ने किया कि उनके पास रोज टाइम नहीं था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने के लिए, तो दूसरे के साथ शेयर करना शुरू किया उसको, कि कहा कि ठीक है एक दिन आप जाइए और वहां से आप जो सीख करके आएंगे मैं आपसे वो सीख लूंगा। क्योंकि असल में वो जो उसकी एक टाइमिंग थी, दर्स की जो पढ़ाते थे उसकी टाइमिंग, उस टाइम में वो नहीं आ सकते थे, लेकिन शाम के टाइम में वो इनसे सीख ले सकते थे। तो अब टाइम मैनेजमेंट होता है असल में ये, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। याद कीजिए, अगर आप निकालना चाहेंगे टाइम तो निकल जाए, नहीं निकालना चाहेंगे तो टाइम कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट तो शैतान की होती है इस सिलसिले में, तो कभी भी आपको कामयाब होने नहीं देगा। मैंने देखा अपने बहुत सारे भाइयों को, बहुत सारे साथियों को, जाते हैं होटल में खाने के लिए गए, कभी कभी मैं उनके साथ गया हूँ तो उसके बाद से मैं असल में इसको पसंद नहीं करता। मुझे सबसे ज्यादा इसमें जो परेशानी महसूस होती है कि ऑर्डर देने के आधे घंटे के बाद ये आधा घंटा हम ऐसे ही चला गया हमारा, हम कभी उसके बारे में सोचते ही। जुमे की नमाज को गए हम भाइयों, जुमे की नमाज को गए, बाहर निकले, आधा घंटा कभी कभी एक घंटा हो जाता है, तो बाहर जो है अपने साथियों के साथ खड़े होकर बातें ही करते रहते हैं। ये चीजें आप जो है चाहेंगे तो ऐसे जो है चीजें होंगी कि जहां से आप थोड़ा कट कर सकते हैं और वहां से कट करके अपना वक्त सीखने में लगाए। इससे आपको खुशी भी मिलेगी और फायदा भी होगा, क्योंकि इल्म का तो अपना फायदा ही है। कभी भी इल्म आप कोई भी हासिल करते हैं ना तो उसका फायदा हासिल होगा ही। आपको मेहनत करने की आदत डालिए, एक आम चीज क्या है इसमें, मेहनत करने की आदत डालिए। पहले भी मैंने ये चीजें जो है किसी और जो है लेक्चर में बताई थी, तो शायद याद हो आपको। जी और कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, इंसान को सेहत के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कितना वक्त सोना चाहिए? हर इंसान का अपना अलग अलग जो है हिसाब होता है, और उम्र के लिहाज से भी, एज के लिहाज से भी ये होता है। और ये हमेशा याद रख लीजिए कि इंसान अपनी आदत का गुलाम होता है। जैसी उसकी आदत पड़ जाती है, यानी जिससे आज के दौर में आप कहते हैं यूज टू हो गया, तो वैसे ही फिर उसका जो है मसला, उसका जिस्म भी वैसे ही है। अगर किसी को 10 घंटा सोने की आदत पड़ जाए तो 10 घंटा सोता ही है, वरना ज्यादा से ज्यादा आदमी के लिए 6 घंटे की नींद काफी होती है। 6 घंटे की नींद। अब ये 6 घंटे की नींद, इसका टाइमिंग सही होना चाहिए, ये अहम चीज है। जिनको रात की ड्यूटी होती है मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिनकी रात की ड्यूटी नहीं होती है, अगर वो लोग टाइमिंग सही करें सोने की, तो रात की नींद अगर किसी को 5 घंटा भी सही मिल जाए, अच्छी नींद मिल जाए, तो उसकी हेल्थ के लिए ये काफी है। लेकिन 1 घंटा फिर दिन में उसको, जिसे कैलूला कहते हैं, दोपहर के वक्त में उसको निकालना, सुबह के वक्त में नहीं, दोपहर के वक्त में उसे निकालना चाहिए। और दोपहर का खाना खाने के बाद 1 घंटे का आराम से मिलना चाहिए। इससे फिर काम करने में दोबारा उसे आसानी होती है और दोबारा फिर से उसके जो भी जो एक्टिवनेस है ना वो वापस आ जाता है, जब दिन में 1 घंटा और आराम कर लेता है।
जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही किया करते थे। रात को आप जो है सोते थे, जल्दी सोते थे, लेकिन रात को उठ जाते थे ना, तहज्जुद की नमाज बड़ी लंबी पढ़ते थे, फिर आप जो सुबह में नहीं सोते थे, फिर कब दोपहर को खा करके आप थोड़ी देर के लिए लेट गए। तो यही उसका सही तरीका होता है। तो 6 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा हम अगर अपना हिसाब लगाएंगे तो ठीक है। हम लोगों का क्या है कि हम सोने से पहले भी काफी टाइम अपना बर्बाद करते हैं, और सो करके जागते हैं जब ना, तब भी हमारा अच्छा खासा वक्त मुख्तलिफ कामों में, उठे तो बड़ी सुस्ती के साथ, थोड़ा ये जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो काम हम 10 मिनट में कर सकते थे वो आधे घंटे में करते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ये बात कहता रहता हूँ कि हमें जो खाना 5 मिनट में खा लेना चाहिए, वो खाना हम खाने में कभी 1 घंटा भी लगा देते हैं। तो इतना वक्त तो गया। मालूम हुआ कि टाइम मैनेजमेंट सही नहीं। कभी इस इंतजार में कि ये लाओ, उसके लाने के इंतजार में, खाने के, ये खाना दो, फला निकाले करे, अच्छा खासा टाइम इसी में चला जाता है। खाने का अपना एक टाइम है, उस टाइम पर जो है खाना, उससे ज्यादा वक्त उसमें नहीं लगना चाहिए। आप खुद अपने घर में देख लीजिएगा इसको, जो मैं कह रहा हूँ आपको, सब में टाइम मैनेजमेंट की बात है। जी जी। हाँ, कि आप खाने के लिए जब आप गए तो कितना टाइम आपका पास, ये अब क्या आपको उसमें इंतजार करना पड़ा, खाने के लिए कितना आपने इंतजार किया, और इस इंतजार में कितना टाइम दिया, उस इंतजार के टाइम में आप क्या काम कर सकते थे। अगर आप उसका थोड़ा सा ख्याल करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से बरकत हासिल है। और गैर जरूरी जो है टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो टाइम है ना, यही टाइम हर एक के पास होता है, यही 24 आवर्स हर एक के पास होते हैं, यही जो है तो 7 दिन का 7 days 1 week ये हर एक के पास है, और 30 या 31 days इन ए मंथ यही हर एक के पास है, 365 days एक साल में यही हर एक के पास है। बस लोगों में फर्क ये होता है कि कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट उनका सही होता है तो इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो सही इस्तेमाल नहीं कर पाते वो पीछे रह जाते हैं। टाइम तो हर एक के पास वही था, ऐसा नहीं था कि उनको 24 आवर्स मिला था और मुझे 20 आवर्स मिला था तो मैं कैसे जो है मैनेज करता, नहीं, मेरे पास भी वही 24 आवर्स है, दूसरे के पास भी वही है। फर्क ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट सही है। जी, और कोई सवाल? कुछ सिस्टर्स के सवाल है शेख। हाँ बोलिए। कि अगर उनको तालीम के लिए एनकरेज करते हैं, मगर व्हेन दे हैव द राइट नॉलेज, और जब घर पे शेयर करते हैं तो हस्बैंड या उनके मदर इन लॉ बोलते हैं नहीं ये ही हमारा तरीका है, वो सब छोड़ो ये करो, तो फिर कैसा करना है? जी, अगर किसी को ये परेशानी हो सकती है, ये जैसा कि जो है सवाल में हमारी बहन कह रही है, उन्होंने कुछ सीखा और अब वो जो है जो सीखी हुई बातें हैं उसको घर में शेयर कर रहे हैं, तो मदर इन लॉ या और भी कोई जो है हो सकती है, कोई भी खातून, कोई भी आदमी घर में कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारा ये तरीका नहीं है, हमारा जो पहले से तरीका चला रहा है ना वो ये है और हम उसी को फॉलो करेंगे, ये सब नई चीजें हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह की बातें, इस तरह का माहौल, इस तरह की परेशानियां घर में हासिल होती है, घर में होती हैं। ये इस तरह के सवालात भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि जो है ये चीज कहाँ से लेकर के आ गए, ऐसा तो नहीं था, ये तो ऐसे है, हमारे बाप दादा ऐसे ही करते आए। तो कहते हैं लोग कि सही नॉलेज के रास्ते में और इसी तरीके से सही नॉलेज के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने में जो बहुत बड़ा बैरियर है इंसान के लिए, वो ये है, रुकावट है ये बहुत बड़ी। यही बातें तो मक्के के लोग भी कहते थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले के भी जो अंबिया प्रॉफिट गुजरे हुए ना, उनके ताल्लुक से भी यही बातें कहते थे लोग। क्या कहते थे कि हमारे बाप दादा तो ऐसे करते आए हैं,
हमारा तरीका ये है, आप तुम नई चीज क्यों पेश कर रहे हो? ये लोगों को हमें इससे बाहर निकालना है, और इससे बाहर निकालने का जो तरीका है ना, वो नॉलेज ही है। बेहतरीन तरीका, बेहतरीन रास्ता क्या है? नॉलेज, इल्म। उनको इल्म की रोशनी में लेकर के आओ, उसके बाद देखना कि किस तरीके से ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है। तो ये चीज भी ऐसी नहीं है कि आप कोई जादू की छड़ी है, जादू ये मैजिक, जैसे बहुत मशहूर है ना, आप कहते हैं अलादीन का चराग रगड़ दिया और फौरन हाजिर हो गए। बताइए जो है क्या काम है फौरन जो है तैयार हो करने के लिए? ये कोई जादू की छड़ी ऐसी नहीं होती है कि उसको किसी के ऊपर फेर दिया और फौरन इस्लाह हो गई और सारे की सारी चीजें हमारे इसके मुताबिक हो जाए। ऐसा नहीं होता है। तो स्टेप बाय स्टेप, जिस बहन का भी ये सवाल है हम उनसे ये कहेंगे कि यकीनन घर में ऐसा होता है, ये सवाल भी आते हैं, और हमारा ये है कि हम बड़ी हिकमत के साथ वहाँ पर, यानी ये हिकमत क्या होता है? विजडम जो है उसको जो है यूज करते हुए इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम उनको लाने की कोशिश करें। एक ही वक्त में आप चाहेंगे कि सबकी इस्लाह हो जाए और सबकी सब राइट पाथ पे आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप बहरहाल कोशिश करें। वहां से आपको जो है डिस्करेज तो किया जाएगा, इंकरेज करने के बजाय डिस्करेज तो आपको किया जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सब्र करते हुए उसी में लगे रहें, थोड़ा थोड़ा करके इंशाअल्लाह ये परेशानी का ये जो है मामला खत्म होगा और उनको आहिस्ता आहिस्ता बात समझ में आएगी, अगर अल्लाह ताला उनको हिदायत देना चाहेगा तो। जी दूसरा सवाल है, अभी आप स्टेप बाय स्टेप, जो अगर कोई नॉलेज सीखना चाहते हैं तो कौन सा पहले प्रेफरेंस में रखना है, कौन सा टॉपिक्स पहले शुरू करनी है और कहाँ से ये तालीम लेना है? जी हाँ, दो चीजें हैं। ये पहले जो है ये है कि उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, और दूसरा ये है कि किससे सीखना है और जो है सिखाने वाला कैसा होना चाहिए। ये दोनों बातें हर इंसान के लिए जो सबसे पहली चीज उसके ऊपर फर्ज है ईमान के बाद, इसके बाद तो ये है उसके अपने दीन को सीखना, और चीजें भी सीखना है उसको, तो उसका इनकार नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन ये जो है ना प्रायोरिटी जिसे कहते हैं उसको जो देना है, तो सबसे पहले क्या है उसको अपने दीन के बारे में, जिसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। और हमें अपने दीन को सीखना होता है, तो हम अपने दीन को अगर सही सीखना चाहते हैं तो फिर अरबिक लैंग्वेज से भी हमारा रिश्ता होना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा दीन अरबिक लैंग्वेज में है। कोई आदमी हमको ट्रांसलेशन करके सिखा रहा है, बता रहा है, तो वो तो ट्रांसलेशन करके कुछ ना कुछ तो हम सीख तो लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सही उसका नॉलेज है और जो हाई लेवल का नॉलेज होता है उसको अगर जानना है तो उस तक पहुंचना है तो हमें अरबी सीखना पड़ेगा। ये बेहतर होता है कि अगर आदमी थोड़ी सी कोशिश करके पहले अरबिक लैंग्वेज सीख ले, तो कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है इसमें, बस थोड़ी मेहनत करनी होती है। थोड़ा अगर मेहनत करेंगे तो जो है अगर अरबिक लैंग्वेज सीख लेंगे तो उसके बाद इंशाअल्लाह ये जरूरी है याद रखिए कि उसके सामने जो नॉलेज के दरवाजे हैं ना, उसके जो गेट हैं वो सब खुलते जाते हैं। ये की है उसके पास, और इसी की से वो हर जो है दरवाजे को खोलता जाएगा, हर जो है लॉक को खोलता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। तो की जितनी अच्छी होगी, हमको की हासिल करना है, तो वो की हासिल करने के लिए आप एक मामूली चीज खरीदना होता है, आपको तो 10 दुकानें देखते हैं और 10 जगहों पर तहकीक करते हैं कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है और किसका कितना ड्यूरेबल है, क्या है, वो सब देख करके आप जो है लेते हैं। तो अब जब ये नॉलेज की बात है, इल्म की बात है, आपकी जिंदगी को संवारने की बात है, आपकी आखिरत को बनाने की बात है, तो कितना हमको देखना चाहिए कि सिखाने वाला सबसे पहले तो वाकई उसके पास वो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास खुद नॉलेज ना हो वो दूसरे को नॉलेज क्या
चंद चीजें सीख लेने को नॉलेज नहीं है, उस फन के अंदर उसे एक्सपर्ट होना चाहिए और ऐसे किसी आदमी को देख करके उसके पास हासिल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह सही इल्म हासिल होगा। फिर दूसरी अहम चीज, आदमी जो है सिखाने वाला सिंसियर होगा, यानी मुखलिस हो, वो वाकई सिखाना चाहता। नहीं तो अगर वो उसके पास नॉलेज तो है लेकिन वो बस क्या है, वक्त गुजार रहा है, सिखाना नहीं उतना, वो तो कुछ पैसे मिल जाते हैं, काम चल रहा है उसके लिए। जो लोग जो है ना सीखने सिखाने को ये समझते हैं कि ये सिर्फ पैसे हासिल करने का जरिया है, या जो टीचर ये समझता हो कि सबसे आसान है टीचिंग करना और जो है इसमें बड़ी आसानी से पैसे हासिल हो जाते हैं, तो ऐसे किसी टीचर का कभी भी इंतखाब, जो आपको सिखाने के लिए बहुत मुखलिस है, वो असल सिखाना ही चाहता है। तो जब वो सिखाना चाहेगा ना तो अल्लाह ताला इखलास की कद्र करता है और अल्लाह ताला, जी हाँ, आपको भी सीखने की वो सलाहियत, ऐसा इंतखाब करके सीखने के आगे बढ़ना चाहिए। बात लंबी हो जा रही है। जी हाँ, ये दोस्त का जवाब। शेख वो पर्टिकुलरली पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट्स वो लिखना चाहते हैं कि कहाँ से शुरू करना है और एग्जैक्टली किसके पास जाना है, उनको थोड़ा इल्म नहीं है। कोई नाम तो हम नहीं बोल सकते ना, हमने क्या है एग्जैक्टली जो था वो क्या है, सबसे पहले आपको दीन सीखना होगा। दीन में कौन से सब्जेक्ट्स? फर्स्ट दीन में जो है, मैंने अभी आपसे कहा कि लैंग्वेज आप सीख ले, इससे शुरुआत करेंगे तो सबसे आसान होगा आपको सीखना। तो जो है आप, क्योंकि हमारा जितना भी है दीन का सब्जेक्ट वो सब की सब अरबिक लैंग्वेज से जुड़ा है, तो अब इन्होंने जो है पूरी बात जो है पहले क्या है हमारे सामने, वो यही है कि आप अच्छी तरह से पहले तो लैंग्वेज सीख लीजिए। अगर 1-2 साल भी आपने लैंग्वेज सीख लिया है तो फिर आपके लिए उसके बाद आसानी क्या हो जाएगी कि आप जो है कुरान पढ़ना समझ जो है शुरू करेंगे, उसको समझना शुरू कर देंगे। आप हदीसें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी बात। अब फिर किसी आदमी के पास आप ये सीखना चाहेंगे तो वो आपको आपका अकीदा भी बताएगा, आपको जो है जो अमल करना है, प्रैक्टिस जो करनी है, जो चीजें अमल की होती है, इबादत जो है वो भी बताएगा आपको, और सही तरीका उसका क्या है, कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है। जब वो प्रूफ देगा तो आपको प्रूफ भी समझ में आएगा पूरी तरीके से, तो आपको बड़ा इत्मीनान हासिल होगा। तो ये सीखने का तरीका यही है। और क्या हम किसी खास शख्स का नाम तो नहीं ले सकते कि आप उनके पास सीखिए, क्योंकि कोई एक आदमी नहीं है, बहुत से लोग हैं जो सिखाने की सलाहियत रखते हैं और उनके पास सीखा जा सकता है। जी ओके, 2 और सवाल शेख। एक, जब वाइफ घर पे बिजी रहते हैं तो हस्बैंड कभी कभी उनको हेल्प नहीं करते, बच्चों को सिखाने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो वो तो वाइफ को कैसे हस्बैंड को एनकरेज करना चाहिए कि वो भी थोड़ा मदद करे बच्चों को तालीम देने में? ये बात असल में एक दूसरा टॉपिक है, ये जो आपका ये सवाल है ये दूसरा टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है कि घर में शौहर और बीवी, ये जो है ना हस्बैंड एंड वाइफ, इनकी लाइफ कैसे होनी चाहिए। तो असल में हस्बैंड और जो है वाइफ, इन दोनों का ऐसा मसला है कि कहते हैं कि ये दोनों दो अलग नहीं बल्कि इनको एक बन करके रहना चाहिए। ये पहली बात है। उसमें कभी जो है इसके बारे में जब हम बातें करते हैं तो ये पहले बात बताते हैं कि हस्बैंड और लाइफ और जो है वाइफ को, जो हम ये जो है कहते हैं ना कि पार्टनर है, नहीं, हम पार्टनर नहीं कहते, वो पार्टनर तो अलग अलग हो जाते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये दोनों एक है। इनको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम एक हैं। इसीलिए हमारे काम जो है अगरचे कि बटे हुए होंगे, कुछ जिम्मेदारियां होंगी जो मैं करूंगा, कुछ जिम्मेदारियां होंगी जो वाइफ करेगी, जी हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग अलग हैं और ये जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है और ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी, ऐसा नहीं होता है। बल्कि घर का हर काम हमारा है, वाइफ का है, हस्बैंड का है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि यहाँ क्या होता है कि हमारा घर का हर काम हमारा है
अगर वो वाइफ कर रही है तो हस्बैंड हेल्प करता है, हस्बैंड कर रहा है वाइफ हेल्प करती है। कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों क्या है, वो तो बिल्कुल जो है, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपना ये हाथ लगाया इस सामान को उठाने के लिए, अब ये सामान जो गिरने लगा तो ये हाथ क्या रुक इंतजार करेगा मेरे कहने का कि आओ तुम भी साथ में लग जाओ, बल्कि ये हाथ तो खुद ब खुद पहुंच जाता है। तो जिस्म है, जिस्म का एक पार्ट है, ये खुद ब खुद पहुंच जाता है दूसरे की हेल्प के लिए। जहां आप कभी भी जो है तो महसूस करेंगे कि चल रहे हैं, गिरने की कैफियत होती है तो ये हाथ ऐसे ही रहता है कि वो तो पैर का काम है चलने का, पैर अपना देखे वो क्यों गिर रहा है, फौरी तौर पर ये हाथ जमीन पे आता है कि बॉडी को छोड़ दो, संभलने के लिए फौरी तौर पे हल्का, एक पैर को कुछ हुआ तो दूसरा पैर जो है संभलने के लिए फौरन। ये है असल में शौहर और बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ। घर की जिंदगी ऐसी, कहने का नहीं कि आप मेरी मदद करो या वो कहे आप तुम नहीं। असल में शौहर और बीवी वो होते हैं जो कहे बगैर समझ जाए। शौहर समझ जाए बीवी के ताल्लुक से कि इस वक्त बीवी हमारी क्या चाहती है, बीवी समझ जाए कि शौहर क्या चाहता है इस वक्त, जबान से कहने के बाद वो चीज मिले तो क्या मिले। अगर कहे बगैर समझ जाए, जैसे हमारे जिस्म के बॉडी का मामला होता है, हमारे जिस्म का, हमारे इस बॉडी का मामला होता है, वैसा रहना चाहिए हिसाब जो है शौहर और बीवी का। और इस तरह की जिंदगी थी अम्मा आयशा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नहीं, इसकी दसियों मिसालें हैं उनकी जिंदगी में। मैं आम तरीके से वो मिसालें, एक मिसाल सिर्फ आपको पेश करूं। बिल्कुल आखिरी वक्त था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया का। आप अपनी बीवी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीने के पास, ये जो जगह है ना, इस जगह पर अपना सर रखे हुए हैं, और उसी के बाद आपका इंतकाल हो जाता है, दुनिया से आप रुखसत हो जाते हैं। यहाँ सर रखे हुए, परेशानी है। उस वक्त अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई जो है अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, वो दाखिल हुए, वहां आए तो उनके हाथ में मिसवाक, उनकी तरफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा, और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर को जो देखा, उनकी आंख सिर्फ देखी तो आपको महसूस हो गया कि आप मिसवाक करना चाहते। जबान से नहीं कहा था आपने कुछ भी, सिर्फ देख, इतना जो है एक दूसरे से इतनी खुर्बत हो जाती है कि क्या कहते हैं इसको, उर्दू में हम लोग कहते हैं कि एक जिस्म दो जान, या दो जिस्म एक जान, ये कहते इतना एक दूसरे की फीलिंग को जो है, एक दूसरे के जो है को इतना जो है महसूस कर लेते हैं, यहाँ तक कि जज्बात को जान जाते हैं। तो फौरन अपने भाई से मिसवाक लिया, मिसवाक तोड़ लिया, पूरी भाई से ले नहीं लिया, तोड़ लिया उसको, बीच में से आधी उनको दिया और आधी जो है पकड़ा नहीं दिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बल्कि खुद जो है उसको अच्छी तरह से चबाया पहले मुंह में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और चबा करके फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, क्योंकि आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप मिसवाक चबा सके, तो आपको दिया तो आपने मिसवाक किया। इसीलिए कहती है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जिस वक्त उनकी वफात हुई तो मेरा थूक और उनका थूक, ये मोहब्बत भी और मोहब्बत भरी जिंदगी भी और बाहमी ताल्लुक भी, ये सारी चीजें ऐसी है जो लोगों को बताने की है और लोगों के मानने की, ये है असल जिंदगी होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते थे तो क्या करते थे, घर के कामों में अपनी बीवियों का हाथ बढ़ा देते, खुद कर लेते थे। आप जो है घर के काम बहुत सारे जो है खुद कर दिया करते। रसूल थे, कितना ऊंचा मकाम था, कम बिजी आदमी थे आप,
इतने सारे सहाबा को तालीम देना और इतने सारे सहाबा की तरबियत करना इतना बड़ा काम था, पूरी उम्मत की जो है जिम्मेदारी थी आपको। लेकिन घर के काम भी अपनी बीवी पे कर दिया करती थी। तो ये शौहर को भी बड़ा ये ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ, फिर बात लंबी हो जाती है जवाब में। अब कोई और सवाल हो तो बोलिए, वरना बात खत्म करते हैं। बस एक आखिरी सवाल यहाँ मेरे पास है, पता नहीं फिर व्यूअर्स में और कितने हैं। लास्ट सवाल, ये आउट ऑफ टॉपिक है, मगर वो चाहते हैं कि अगर हो सकता है तो आप इसको आंसर करें। क्या एक सलफी एक सलफी लड़की देवबंद अकीदा वालों से शादी कर सकते हैं? शादी कर सकते हैं, शादी करने की कोई पाबंदी नहीं है, शादी सही भी है, शादी करना जायज भी है। हाँ, अलबत्ता ये है कि कुछ परेशानियां होती हैं बाद, उसकी वजह से ये मसला जो है रखा जाता है। और मैं भी, जैसे हमें अपनी बेटी के जो ये रिश्ता ढूंढना होता है, तो हम इसलिए जो है जरा सोचने पे पड़ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बिदात और खुराफात जो उनके यहाँ होते हैं तो शादी के टाइम पे वो करना चाहे तो हमें भी मजबूरन शरीक होना पड़ेगा उनके साथ, तो वो परेशानियां आती हैं। तो उन परेशानियों से बचने के लिए कोशिश ये होती है कि जो है रिश्ता कहीं किसी ऐसी जगह करें कि जो है जहाँ पे इस तरह के बिदात और खुराफात के मसाइल ना हो। ये असल वरना निकाह तो हो जाता है, निकाह सही होता है, निकाह का कोई मसला नहीं। निकाह जब यहूद और नसारा से हो जाता है, यानी अगर लड़का जो है ये है मुसलमान है, लड़की अगर यहूदी या नसरानी है, इसका जो है बरक्स नहीं है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि लड़का यहूदी या नसरानी, तो जो है यहूदी लड़की या यहूदी जो है या नसरानी लड़की से निकाह जायज है शरीयत के अंदर। तो ये तो खैर फिर भी एक ही कलिमा के पढ़ने वाले लोग हैं, कुछ उनके दरमियान कुछ आपस में कुछ मसाइल में इख्तलाफ होता है, तो उसकी वजह से निकाह पे फर्क नहीं होता, निकाह तो दुरुस्त होता है, लेकिन बाद में परेशानियां होती हैं, उससे लोग बचते हैं। निकाह जो है इस तरह का रिश्ता करने से लोग थोड़ा सा घबराते हैं, बचते हैं। अगर किसी ऐसे देवबंदी घराने में रिश्ता हो रहा है जहाँ बिदात और खुराफात वगैरह नहीं करते हो, पहले ही जो है इस तरह की कंडीशन रख दी जाए तो फिर निकाह करने में कोई मसला नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह शिक्षक, यहाँ पे तो हो गया। एनीवन एल्स विद अदर क्वेश्चंस? हाँ, काफी टाइम भी हो गया है, मेरे ख्याल में बात को यहाँ खत्म किया जाए। अब आज का चूंकि अब ऐशा का टाइम भी हो चुका है हमारा, तो इंशाल्लाह फिर बाद में मिलेंगे। इसी पर आज का ये जो है दर्स खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।